Good morning, students. Today's our today's topic in sorting techniques. Okay, yesterday we have studied about dictionaries and tuples. Now I hope that all of you have done the programs in dictionary and tuple, and you have revised all those topics. So today we will study about sorting techniques. Sorting, basically, what is sorting? Sorting means arranging the data in ascending or descending order. Sorting means properly arranging them in a particular order. ठीक है, arranging them in ascending order. ठीक है, sorting means arrange the data in ascending order. बढ़ते हुए क्रम में सबको अरेंज करना है हमें जो है. ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू पहले होगी, देन उससे बड़ी वैल्यू, देन उससे बड़ी वैल्यू, देन उससे बड़ी वैल्यू. So initially I have unsorted data and then later on I have to sort it. That means I have to arrange it in increasing order. Now we have two algorithms for this: bubble sort and insertion sort. Two algorithms we have studied in 11th. Now today we will revise them. दोनों ही टेक्निक्स में क्या है हमारा, वी कंपेयर एलिमेंट्स एंड देन स्वैप देम. वी कंपेयर एलिमेंट एंड देन स्वैप देम. सो वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फर्स्ट, देन वी विल see the algorithm, we will write the algorithm step by step. First actually we will see with the help of example that how it works. Suppose now understand that this is my, suppose this is my list, this is my original list, this is my list. ये list है मेरी. It contains 1 2 3 4 5 and 6 elements. It contains 6 elements: 42, 29, 74, 11, 65 and 15. Now as you are seeing it is that these elements are in unsorted order, that these are not in particular increasing or decreasing order, they are unsorted list hai ye. Now I want to sort it. I want to sort it using the bubble sort technique. This technique, whatever technique I will use, that is called as bubble sort. अब इसमें करते क्या है हम bubble sort में, देखिए. First of all we will compare the first two elements. First two element means there are two elements 42 and 29. We will compare both these. Now I check that 42 is greater than 29. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए था. 42 is greater than 29. 29 यानी कि स्मॉल एलिमेंट बाद में है और बड़ा एलिमेंट पहले है. तो यहाँ पे क्या होगा, हम स्वैप करेंगे. अगर ऐसा है तो अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है देन वी विल स्वैप इट. तो हमने स्वैप किया. स्वैप का मतलब क्या होता है आप जानते हो. स्वैप मींस इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स. Swap means interchanging the position of elements. That means 29 की जगह 42 आएगा and 42 की जगह 29 आएगा. If first element is greater than second element. तो हमने 42 and 29 को compare किया. We found that 42 is greater than 29. So we will replace them. अब replace किया तो क्या बन गया इसका, देखो ये हो गया. 29 first position पे आ गया and then 42 comes at the second position. Other elements are same. ये है हमारा पहले पास में हम जो काम कर रहे हैं. फर्स्ट पास में, फर्स्ट टाइम फर्स्ट पास में हम ये काम कर रहे हैं. नाउ अब क्या होगा, अब ये बन गई हमारी लिस्ट है. नाउ बिकम दिस. अब फिर से हम क्या करेंगे, अब सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को अब हम लोग कंपेयर करेंगे. इसको कंपेयर करेंगे सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को. अभी क्या किया हमने, फर्स्ट एंड सेकंड को. नाउ सेकंड एंड थर्ड को करेंगे. अब सेकंड एंड थर्ड को करेंगे तो 42 एंड 74 को करेंगे. अब चेक किया हमने 42 ग्रेटर देन 74. नो, ग्रेटर देन नहीं है तो इस टाइम हम स्वैप नहीं करेंगे. वी विल स्वैप ओनली इन दैट केस इफ फर्स्ट एलिमेंट इज सेकंड ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर 42 क्योंकि बड़ा नहीं है इसलिए इस केस में हम लोग स्वैपिंग नहीं करेंगे. तो एज इट इज रहेगी हमारी लिस्ट. नाउ नेक्स्ट, अब देन हम जो है अब किस में करेंगे, थर्ड एंड थर्ड से जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. नाउ वी विल कंपेयर 74 एंड 11. नाउ 74 11 को किया हमने, 74 बड़ा है 11 से. देन अगेन वी विल स्वैप किया हमने, 11 यहाँ आ गया, 74 यहाँ पे आ गया. देन फिर से अगेन कंपेयर करते हैं इन द सेम वे. अब क्या होगा, 74 एंड 65 को कंपेयर करेंगे. 74 इज ग्रेटर देन 65. सो अगेन जो है इसको स्वैपिंग होगी और 65 74 की जगह आ जाएगा एंड देन लिस्ट बिकम्स दिस. 65 यहाँ आ गया, 74 यहाँ आ गया. फिर अगेन हम लास्ट टाइम पे 74 एंड 58 को कंपेयर करेंगे. देन अगेन फिर से क्योंकि 74 इज ग्रेटर देन 58 वी विल कंपेयर इट, वी विल स्वैप इट.
and 74 will come here and 58 will come here. So ultimately क्या हुआ, जो largest element है that is at the end आफ्टर फर्स्ट पास. पहला पास बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक पास. एक पास का मतलब है पहले एलिमेंट से शुरू किया हमने कंपेयर करना, पहले दूसरे को कंपेयर किया, फिर दूसरे तीसरे को, फिर तीसरे चौथे को, फिर चौथे पांचवे को, फिर पांचवे छठे को. ठीक है, इस तरह से, क्योंकि 6 एलिमेंट्स थे हमने, तो 5 बार लूप को चलाया, पांचवे और छठे तक, फिफ्थ तक, 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट को हमने 5 बार लूप को चलाया, कंपेयर किया, इफ इट इज ग्रेटर देन स्वैप किया. तो इस तरह से एक बार 5 बार चलाने के बाद हमें जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है दैट इज एट द एंड ऑफ द लिस्ट. इट बिकम्स नाउ सेकंड. अब सेकंड पास स्टार्ट होगा. सेकंड पास में अब क्या होगा हमारा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो हमारा सही जगह पे अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो 6 एलिमेंट की लिस्ट थी हमारी, अब हम 5 तक ही करेंगे. सेम प्रोसीजर परफॉर्म करना है, बट अब 5 एलिमेंट्स तक ही परफॉर्म करना है, यानी कि एक कम करना है. अब 1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है हमें, अभी हम 5 तक गए थे, 5 और 6 को कंपेयर किया, अब 1 से लेके 4 तक जाएंगे, तो लास्ट टाइम 4 और 5 को कंपेयर करेंगे, तो लूप क्या होगा, एक 1 टाइम कम चलेगा. अब देखो ये तो फाइनली ये इतने जो लिस्ट का स्पेस है 74, इसको कुछ नहीं करना है, इट इज एट द करेक्ट पोजीशन. अब हमारी लिस्ट ये समझ लो आप कि इतना लिस्ट है, ये ओनली इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स. अब इसको हमें स्वैप करना है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द सेम. 29 और 40 को कंपेयर किया, 29 बड़ा नहीं है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 42, सो इट विल नॉट डू एनीथिंग, इट विल नॉट स्वैप, सो सेम रहेगी लिस्ट, नो नथिंग विल हैपन इन द लिस्ट. ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा. देन सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, 42 11 को, 42 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे स्वैपिंग होगी, 11 विल कम हियर एंड 42 विल कम हियर, स्वैपिंग हो गई, तो दिस बिकम्स द लिस्ट. देन थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, 42 एंड 65 को, 42 इज ग्रेटर देन 65, नो, तो यहाँ पे वो कंडीशन फेल हो रही है, तो इसलिए स्वैपिंग नहीं होगी, एज इट इज रहेगी. देन 65 एंड 58 को कंपेयर करेंगे, देन अगेन जो है यहाँ पे 65 इज ग्रेटर देन 58, यस, तो इस बार स्वैपिंग होगी, 58 विल कम एट द प्लेस ऑफ 65. तो नाउ दिस बिकम द स्क्रीन. तो ये जो हमने 4 बार पास किया इसको, और 4 पास के बाद क्या हुआ, हमारा जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं वो करेक्ट पोजीशन पे आ गए. 65 था ग्रेटर है, वो आ गए यहाँ. अब मेरे पास सिर्फ 4 एलिमेंट बच गए हैं, इनको सॉर्ट करना है मुझे. ओनली 4 एलिमेंट्स आई है, तो अब 3 बार चलेगा खाली लूप, जो है पहली दूसरा कंपेयर, दूसरा तीसरा कंपेयर, तीसरा चौथा कंपेयर. फर्स्ट से शुरू किया 29 और 11 को, तो क्योंकि 29 ग्रेटर देन, स्वैपिंग हो गई, 11 आ गया पहले, 29 बाद में आ गया. तो हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड, तो हम स्वैप कर दे रहे हैं. अगेन फिर 29 42 को हमने देखा, 29 42 में जो है ग्रेटर नहीं है, 29 इज नॉट ग्रेटर देन 42, तो नो स्वैपिंग, एज इट इज रहेगी स्कीम. फिर अगेन थर्ड एंड फोर्थ को देखेंगे, 42 एंड 58, अगेन 42 इज नॉट ग्रेटर देन 58, तो नो स्वैपिंग, तो दिस टाइम इज आल्सो ओवर. अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ तक जो 3 एलिमेंट है वो हमारे करेक्ट पोजीशन पे है. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 3, फर्स्ट 3. और फर्स्ट 3 को देखते हैं, तो फर्स्ट 3 के बीच में कंपैरिजन होगा, सिर्फ 2 ही पास चलेंगे, 2 बार चलाना है लूप को. 11 एंड 29 की चेकिंग होगी, देन 29 42 की. तो 11 29 की हमने देखा दोनों करेक्ट पोजीशन पे है, नहीं कुछ करना है, नो स्वैपिंग. देन 29 42 को देखा कि 29 इज नॉट ग्रेटर देन 42, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, नो स्वैपिंग, एज इट इज. नाउ लास्ट पास बच गया. अब हमारे पास इतनी जो है हमारी जो लिस्ट है इतनी हमारी स्वैप हो चुकी है, सिर्फ 2 एलिमेंट बच गए हैं. देन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो एक ही बार चलेगा. 11 29 को कंपेयर किया, 11 इज ग्रेटर देन 29, नो स्वैपिंग, दैट मींस दे आर इन करेक्ट प्लेस. तो दिस टाइम ओवर हो गया. तो सारी लिस्ट हमने जो है कंपेयर कर ली है, ऑल एलिमेंट्स आर देयर एट देयर करेक्ट पोजीशन. तो दिस इज नोन एज बबल सॉर्ट, दिस इज नोन एज बबल सॉर्ट. ये जो टेक्निक हमने लगाई है इसमें बबल सॉर्ट है, इसी को हम बबल सॉर्ट बोलते हैं, कि हम एक बार में सभी एलिमेंट को कंपेयर करके देखते हैं, लास्ट में लेके जाते हैं. ठीक है, तो इसके लिए इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं एक बार. देखो ये है इसका, ये बबल सॉर्ट की टेक्निक है, मेन फंक्शन एक बनाया हमने. यहाँ पे एल मतलब दिस इज माय लिस्ट 42 29 74 11 65, दिस इज माय लिस्ट. लेन एल मतलब कितनी लेंथ है इसकी, 6 एलिमेंट है, तो 6 लेंथ हो जाएगी, 6 आ जाएगा हमारा एन में. देन ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कर दिया हमने इस स्टेटमेंट से, ओरिजिनल दिखाई दे जाएगी हमारी स्क्रीन पे. देन अब लूप चलाएंगे, 4i इन रेंज n -1 -1, n -i -1. तो i कितना है इनिशियली हमारा, सॉरी 4i इन रेंज n -1. तो i कितना है हमारा, i रहेगा पहली बार n -6 -1 यानी कि 5 रहेगा, और i स्टार्ट होगा हमारा 0 से लेके 5.
5 क्योंकि रेंज में दिया तो 0 से 4, 0 1 2 3 एंड 4 पहली बार चलेगा, पहले है 5 बार। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड 4 यानी कि 5 टाइम चलेगा, लास्ट वाले 5 से एक कम। ठीक है, क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। फॉर जे, जे की वैल्यू क्या रहेगी, जे की वैल्यू एक आगे से रहेगी n माइनस आई, एन माइनस आई, आई 0 है क्योंकि यहाँ पे तो n माइनस 0 यानी कि n, n है 6, 6 माइनस 0 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी कि 5। जे की वैल्यू क्या क्या रहेगी पहली बार के लिए 5, 0 से लेके 5, तो 0 1 2 3 4 ये भी रहेगा। अब फर्स्ट टाइम क्या होगा हमारा, ये देखते हैं। इफ L0 इज ग्रेटर देन L0 प्लस 1, देखा, यानी कि पहले और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो बड़ा है तभी हमें स्वैपिंग करनी है। ये स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग के लिए क्या किया हमने, LJ, LJ प्लस 1 इक्वल टू LJ प्लस 1, LJ, यानी कि LJ प्लस 1 इसमें LJ में स्टोर हो जाएगा, LJ प्लस 1 LJ में स्टोर हो गया, और LJ प्लस 1 में क्या स्टोर हो गया, LJ। ठीक है, उल्टा हो गया, LJ में LJ प्लस 1 नेक्स्ट एलिमेंट आ गया इसमें, और इस वाले एलिमेंट में LJ प्लस नेक्स्ट एलिमेंट में आ गया LJ, तो उल्टा हो गया। तो ये कोमा की हेल्प से एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख के हमने देखो ये कर दिया स्वैपिंग, इसको बोलते हैं स्वैपिंग, ये इंटरचेंज कर दी दोनों वैल्यूज को। कब किया ये इंटरचेंज, जब पहली वैल्यू ग्रेटर देन है सेकंड से। अब इसके बाद फिर से अब सेकंड लूप चलता रहेगा हमारा, सेकंड लूप में क्या होगी, वैल्यू 1 हो जाएगी जे की, वैल्यू 1 हो गई जे की। तो अब क्या कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, L1 ग्रेटर देन L1 प्लस 1 यानी कि L2। अब 1 की यानी कि 1 यानी कि सेकंड एलिमेंट, 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, तो 2 और 3 का कंपैरिजन हो रहा है, देन 3 और 4 का कंपैरिजन होगा, देन 4 एंड 5 का कंपैरिजन होगा। तो उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट जो है खत्म हो जाएगा लूप, देन वी विल कम आउट ऑफ द लूप। अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं, इस तरह से होने पे फिर एक बार चलने के बाद फिर दोबारा से जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस तरह से चलेगा। नाउ लेट अस रन दिस कोड, देखते हैं इसको। यहां से कॉपी नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं जो है करता हूं फाइल, न्यू फाइल, इसको मिनिमाइज कर देता हूं, आई राइट दिस प्रोग्राम हियर। ये मैंने पाइथन खोला है, मैं इसको यहाँ पे प्रोग्राम को लिख लेता हूँ। देखो def मेन, कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड से बनता है वो, उसका कोई नाम दे देते हैं, हमने मेन नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके पीछे एक कोलन लगा दो हर फंक्शन के सामने। अब देन एल इक्वल टू, ये लिखा मैंने 42, 29, 74, 11, 65, 8। तो दिस बिकम माई लिस्ट, ये लिस्ट बन गई है मेरी। देन n इक्वल टू len l, ये लेंथ निकाल ली इसकी। देन प्रिंट, प्रिंट किया हमने, प्रिंट किया ओरिजिनल लिस्ट। तो ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हमने लिखा ओरिजिनल लिस्ट। ये मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, तो ये जो है एज इट इज जो है प्रिंट हो जाएगा जितना डबल कोट्स में। इसके बाद मैंने एल दे दिया, तो यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से हमने अपनी ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कर लिया। अब 2 लूप चलाएंगे हम, 4 आई इन रेंज, हमने क्या लिया n-1, फिर दूसरा दे दिया एक और 4 रेंज -i-1, ठीक है, चला दिया। अब फिर क्या किया हमने इसको, इफ, अब कंपेयर करेंगे हम लोग, इफ एल आई एल जे इज ग्रेटर देन एल प्लस 1, अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है, देन क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप करने के लिए हमें सिंपल सा करना है, एल
एल जे, ये जो जे पोजीशन पे जो एलिमेंट है, कोमा एल जे प्लस 1, इसको रिप्लेस कर देना है हमें एल जे प्लस 1 कोमा एल जे, ठीक है। लास्ट में बाहर निकल के क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या करना है प्रिंट, सॉर्टेड लिस्ट है हमारी, सॉर्ट हो गई है, सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी, एल को प्रिंट कर देंगे और सिंपल ये मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। इसको मैं चलाता हूँ, इसको मेन को कॉल कर देता हूँ, इसको लास्ट में जाके जस्ट सी दैट दिस इज माय प्रोग्राम दैट आई हैव रिटन। ये मेरा प्रोग्राम है। अब इसको हमारी ये लिस्ट थी 42, 29, 74, 11, 65, 58। नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम। रन किया मैंने, देन देखिए ये रिजल्ट आया मेरा। ओरिजिनल लिस्ट की 42, 29, 74, 11, 65, 58 और सॉर्टेड होने के बाद ये देखो 11 यहाँ आ गया, 29 यहाँ आ गया, 42, 58, 65, 74। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट है। तो दिस वे हमने ये बबल सॉर्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेना है, इसका प्रोग्राम को मेमोराइज करना है प्लस उसके एल्गोरिथम को मेमोराइज करना है, ठीक है। नाउ एक और हमारा यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, उसका नाम है दूसरे का इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट को देख लेते हैं। ये भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, दैट मींस ये भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है वैल्यूज को। तो इसमें क्या होता है, ये सपोज करो दिस इज माय सॉर्टेड, दिस इज माय लिस्ट, ये है मेरी लिस्ट कंटेनिंग 6 and 1 7 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में। फर्स्ट पास में क्या होगा, हम पहले दोनों को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 40, अब 70 इज ग्रेटर देन 49, 70 ग्रेटर देन 49, तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी, क्योंकि पहला बड़ा है दूसरे से, तो हमारी स्वैपिंग हो गई। तो 14, 70 यहाँ पे आ गया और 49 इसकी जगह पे आ गया। देन नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड पास स्टार्ट हो गया। अब सेकंड पास जो स्टार्ट हुआ है हमारा, अब हमारा कहाँ पे होगा, ये 40, 70 और 31, सेकंड और थर्ड एलिमेंट की हम सॉर्टिंग करेंगे, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट। तो 70 और 31 की हुई, तो अब 31 क्योंकि छोटा है हमारा, तो ये स्वैप हो गया। अब 31 क्या होगा, फिर पहले 31 को रिप्लेस किया, यहाँ पे 70 आ गया। अब इस 31 की चेकिंग होती जाएगी बैक, वापस जिसको हमने पहले किया। 49 से भी कंपैरिजन होगा उसका, यानी कि पहले एलिमेंट तक कंपैरिजन होगा उसको, जब तक कि वो राइट पोजीशन पे इंसर्ट नहीं हो जाता। राइट पोजीशन पे इसको इंसर्ट करेंगे 31 को। 31 को 49 से कंपेयर किया, अभी भी छोटा है, देन इट विल गो फर्दर, तो ये 31 आ जाएगा, 41 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में एक्चुअली इंसर्शन सॉर्ट में हम कर क्या रहे हैं, दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं एंड देन उसको, अगर वो छोटा है तो उसको आगे लेके आ रहे हैं उससे और वहां पे इंसर्ट कर दे रहे हैं, फिर उसको उससे पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर कर दे रहे हैं। जब तक वो छोटा रहेगा दूसरे एलिमेंट से, तो हम उसको इंसर्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, स्वैपिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले 70, 49, 70 का किया, तो 70 क्योंकि हमारा सॉरी पहले ये था 17, 49, 49 छोटा था, तो 49 को वहां पे ले गए, 70 को यहाँ पे स्वैपिंग कर दी। देन फिर हमने नेक्स्ट में देखा 70 और 31 का किया हमने, तो 31 हमारा 70 बड़ा है, तो स्वैपिंग कर दी, 70 आगे 31 यहाँ। फिर 31 एंड 49 का कंपेरिजन हुआ इन दोनों में, क्योंकि 31 छोटा है तो वो आगे जाके चला जाएगा 41 यहाँ। तो इससे क्या होगा, हमारा पहले दोनों एलिमेंट क्योंकि सेकंड तक किया हमने अभी, तो ये हमारे लिस्ट में वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए हैं। अब आगे चलते हैं थर्ड, अब तीसरे एलिमेंट से चलेंगे 70 से। 70 और 6 का कंपैरिजन होगा, 6 छोटा है क्योंकि 6 आगे आ गया, यहाँ पे 70 यहाँ आ गया। फिर 6 49 का कंपैरिजन होगा, तो फिर 6 यहाँ पे आ गया, 49 यहाँ आ गया। फिर 6 और 31 का कंपैरिजन हो गया, तो 6 अपनी करेक्ट पोजीशन पे चला गया। तो इस तरह से हम हर एलिमेंट को उठा रहे हैं और उसको करेक्ट पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। पहले एलिमेंट को लेके गए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, अब फोर्थ को लेके गए। तो इस तरह से अब हमने अभी तक किया था तीसरे और चौथे का। अब तीसरे चौथे के बाद हम जो है शुरू करेंगे फोर्थ एलिमेंट से। फोर्थ एलिमेंट है हमारा 70, तो 70 और 65 को कंपेरिजन किया। 65 क्योंकि छोटा है तो स्वैपिंग हो गई। अब 65 और 49 का कंपेरिजन किया, तो यहाँ पे क्या है, 49 जो है छोटा है 65 से, अब बड़ा नहीं है, तो अब वो फेल हो रही है कंडीशन, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी, तो ये आगे नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू
अब आगे हमारी चेकिंग करने की हमें जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ तक हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट जाएंगे, आगे के दो एलिमेंट कंपैरिजन किया, छोटा है 68 तो फिर से स्वैपिंग करी, फिर 68 70 का होगा कंपैरिजन, तो ये भी छोटा है। 81 यहाँ गया तो 68 70 का कंपैरिजन हुआ, तो इन ये दोनों भी यहाँ पे आ गए, ये दोनों फिर से स्वैपिंग में, फिर 68 65 का हुआ, तो यहाँ पे 65 ऑलरेडी स्मॉल है तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा हमारा ये। तो इस तरह से हमारा ये स्टॉप, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, करेक्ट पोजीशन पे उसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उल्टा है ये इसमें, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है। फॉर ईच पास इट इज ओनली कंपेयर्स एडजेसेंट आइटम्स, एडजेसेंट आइटम को सिर्फ कंपेयर करता है ये, एंड स्वैप्स, बट आल्सो स्लाइड्स अप ईच लार्जर एलिमेंट अंटिल इट गेट्स टू द करेक्ट लोकेशन। बट साथ में क्या है, उसको स्लाइड अप करता है, और जब तक कि उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाती तब तक वो करता जाता है, ठीक है। तो इसका जो एल्गोरिथम है उसको ऐसे देखेंगे, a इक्वल टू दिस इज माय लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कर दिया, और j इक्वल टू a डॉट इंडेक्स i इन a, जब तक कि i हर वैल्यू के लिए करना है इसमें, i इन के लिए का मतलब पहले पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, फिर फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, हर एक वैल्यू को लेना है फॉर i में। पहली बार वैल्यू आई 70 में, j इक्वल टू a डॉट इंडेक्स i, इंडेक्स i का क्या इंडेक्स है, i हमारी 70 का इंडेक्स है हमारा a में 0, तो j को 0 ले दिया, while j greater than 0, while j greater than 0, तो 0 is greater than 0 फेल हो गया, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 49 का इंडेक्स है हमारा 1, फिर कह रहा है while j greater than 0, तो 1 है हमारा j अभी, क्योंकि इंडेक्स 1 है तो 1 greater than 0 है, यस करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, a j माइनस 1 यानी कि 0 इज ग्रेटर देन a j, अगर 1 से बड़ा है, अगर a 0 पहले वाला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो हम स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। 0 की जगह पे j आ जाएगा और j की जगह पे j माइनस 1 आ जाएगा, स्वैपिंग हो गई। एल्स ब्रेक, अगर नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, फिर ब्रेक कर देंगे, वापस फिर से लूप स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। j इक्वल टू j माइनस 1, j कितना हो जाएगा हमारा, 1 कम हो जाएगा हर बार। अब अगली बार 31 आएगा, 31 i में आया, 31 का इंडेक्स है 2, तो j चलेगा जब तक कि 2 ग्रेटर देन 0 है तब तक चलेगा। देखा कि 2 माइनस 1 1 और 2, 1 और 2 को कंपैरिजन किया, क्या 1 बड़ा है 2 से, अगर बड़ा है तो इसको जो है हम लोग स्वैपिंग करेंगे, अगर नहीं बड़ा है तो ब्रेक हो जाएगा। अगर बड़ा है ये और स्वैपिंग की है हमने तो फिर j को करेंगे एक कम, j हो जाएगा हमारा 1, और फिर 1 और 0 का कंपैरिजन होगा फिर से, और अगर वो बड़े हैं तो फिर से स्वैपिंग होगी। तो इस वे से हमने एक एल्गोरिथम बनाया है ये इंसर्शन सॉर्ट का, इसकी हेल्प से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एल्गोरिथम आपको याद रखने हैं और इनको याद भी करना है, और इनके सीक्वेंस को फिर से एक बार देख लेना है। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब इसको हम रन करके देखते हैं, फिर उसको चलाते हैं कैसे ये रन होता है, ठीक है। तो लेट मी ओपन द okay, now I have write this program in the Python IDLE, इसमें लिख दिया है। now let us learn this program, run this program. First we have to save the program, so I will give this name insertion, because it is insertion source, so I have given it the name insertion. Now it will run. Okay, enumerate syntax, somewhere we have done some mistake, so let me correct, ये semicolon लग गया है, यहाँ पे होना था colon। अगेन इसको रन करता हूँ मैं, ओके ये देखो ये रन हो गया। इस बार ओरिजिनल लिस्ट थी हमारी, ये 7 एलिमेंट्स थे, 70 49 31 6 65, लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग 6 31 49 65 68 17। तो इस वे हम वी कैन डू इंसर्शन सॉर्ट। तो ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट हो गया, ये एल्गोरिथम आपको याद कर लेना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दोनों एल्गोरिथम बबल सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट दोनों को पहले समझना है अच्छे से, आपको फिर से रिवाइज करना है इसको, फिर से दोनों प्रोग्राम्स को पढ़ना है, इसको थोड़ा याद कर लेना। थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक बार आप एक दो बार इसको रिपीट करोगे देन इट विल यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, ठीक है। ठीक है बेटा, इट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। कल हम लोग रैंडम फंक्शन पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आप उसको देख लेंगे फिर